Hello dear student, welcome to the e-Pathshala, the Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. It's our lecture number 6 in which we'll we'll discuss about the band theory of solid. In our previous lecture, lecture number 5, we already discussed about the uh, Fermi energy and density of state and the starting of band theory. Okay, so in this lecture, we will detail discuss about the band theory of solid. We already know that the electrical property is divided into three parts: free electron theory, quantum theory, and band theory, or here we also say as a zone theory. Okay, so this band theory is also based on the quantum theory. Okay, so let's discuss about the band theory of solid. Myself Shailesh Jaiswal, Assistant Professor, Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. So we know that the electron is moving around a nucleus in a circular orbit, and uh, there is a valence electron in the outermost orbit. Okay, so the number of bands, valence bands, is created due to this outermost valence shell in each atoms. Okay, so here we see the energy level diagram. This is the energy level diagram of one atom, energy level diagram of two atoms, energy level diagram of three atoms. If the number of atoms is increasing, so the bands, valence band एनर्जी लेवल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. इट मीन्स दैट कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इसके पहले के प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि वैलेंस बैंड, एक एटम का वैलेंस बैंड, दूसरे एटम का वैलेंस बैंड, तीसरे एटम का वैलेंस बैंड, ऐसे वैलेंस ऑर्बिट, ऐसे नंबर ऑफ एटम्स के वैलेंस ऑर्बिट को कलेक्ट करते उसको बैंड तैयार होता है. ठीक है, उस बैंड को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड. और उसके ऊपर के जितने भी एनर्जी लेवल रहेंगे, हायर एनर्जी लेवल, उसको बोलेंगे हम कंडक्शन बैंड. और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच के बैंड गैप को बोलेंगे हम बैंड गैप, एनर्जी गैप, और भी इसे ऐसे फॉरबिडन एनर्जी गैप. ओके, ठीक है. तो डेंसिटी ऑफ स्टेट में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, फर्मी एनर्जी में हमने देखा था कि फर्मी एनर्जी लेवल इसको बोलेंगे कि उसके नीचे के सभी एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन से फील्ड रहेंगे at 0 degrees Celsius पे. So at the last completely filled at least at T is equal to 0 Kelvin band is called as valence band. The next band with higher energy is conduction band. The conduction band can be empty or partially filled. And the energy difference between the bottom of the conduction band and the top of the valence band is called as band gap or forbidden gap. This band gap measure in electron volt is very important. The band gap between the valence band and the conduction band is measured in the electron volt, and these are the energy levels atom in a solid. Okay, तो मेन पॉइंट हमारा, हम तो अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि इस बैंड थ्योरी के अंदर में क्या क्या हम देखने वाले हैं. ठीक है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और उसके बीच का जो है वो फॉरबिडन बैंड गैप. ठीक है, सो यूजफुल वे टू विजुअलाइज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, insulator and semiconductors is to plot the available energies for the electron in the materials. So instead of having discrete energies as in the case of free electrons, free atoms, the available energy state forms a band. So in the middle the structure shows like that, and the Fermi energy, Fermi level, is represented in these three types: metal, semiconductor, and insulator. Okay, so along x-axis we show the electron energy. Okay, so see the Fermi level in metal, the Fermi level is near to the valence band, semiconductor is middle, and the in insulator the Fermi level is near to the conduction band. Okay, so energy band for solid. So we know that in an insulator
the band gap between the valence band and conduction band is very large. So large energy gap between the valence and the conduction band. Okay, and the Fermi energy level is near to the conduction band. In semiconductor is the middle, and in conductor is near to the valence band. Okay, so an important parameter in the band theory is the Fermi level, the top of the available electron energy level at low temperatures. The position of the Fermi level with the relation to the conduction band is a crucial factor in determining the electrical property. So let's see one by one about the insulator, semiconductor and conductor. So first we discuss about the insulator. So most solid substances are insulator, and in terms of the band theory of solid, this implies that there is a large forbidden band gap between the energies of the valence electrons and the energy at which the electron can move freely through the material, that's conduction band. It means that insulator में क्या रहता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इसके बीच में बहुत लार्ज बैंड गैप रहती है. सो लार्जर एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ऐसे मटेरियल को हम इंसुलेटर बोलेंगे. ठीक है. कंडक्टर में देखिए क्या रहता है. इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, द मेटल आर यूनिक एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. This can be seen to be a result of their valence electron being essentially free. In the band theory, this dissipate as an overlap of valence band and conduction band, so that at least a fraction of the valence electron can move through the material. तो कंडक्टर में क्या रहता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये दोनों ओवरलैप रहते हैं, उसके बीच में कोई बैंड गैप नहीं रहती है, कोई फॉरबिडन गैप नहीं रहती है. ठीक है. तो एनर्जी, तो इस केस के अंदर में क्या होता है कि सडनली एनर्जी देने से वैलेंस बैंड में के इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं. तो इस टाइप के मटेरियल को हम कंडक्टर से बोलते हैं. और लास्ट में हम देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे. फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो प्योर होता है, लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, the Fermi level is essentially halfway between the valence and the conduction band. Okay, we already discussed in our previous slide. So although no conduction occurs at 0 Kelvin, at higher temperature a finite number of electron can reach the conduction band and provide us some current. Okay, in doping semiconductor extra energy levels are added. इसका मतलब हुआ कि सेमीकंडक्टर्स मटेरियल के अंदर में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है उसके बीचों बीच फर्मी लेवल रहती है. और 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री केल्विन पे, 0 डिग्री केल्विन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का कंडक्शन बैंड में एंटर नहीं होता है जब तक हम उसको सफिशिएंट एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट अगर उसको प्रोवाइड किए अबव 0 केल्विन तो इजीली वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं. ऐसा कौन से इसमें होता है, वैसे ऐसे होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कि प्योर होता है. और डोप सेमीकंडक्टर मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसके अंदर में अगर हम डोपिंग कर देते हैं तो उसका एनर्जी लेवल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बदल जाता है और उसके अंदर में एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल ऐड हो जाती है. ठीक है. जिसके वजह से ये भी हो सकता है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जल्द से जल्द कंडक्शन बैंड में जाए. ठीक है. और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मटेरियल की बढ़ जाए. तो ये हमने देखा कि कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, इसके अंदर में फर्मी लेवल की पोजीशन कहाँ पे रहती है और बैंड गैप इसमें कितनी रहती है. तो इंसुलेटर पे बहुत बड़ी बैंड गैप रहती है, लार्ज बैंड गैप रहती है. कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप रहती है. ठीक है. और सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बैंड गैप रहती है. फर्मी एनर्जी लेवल उसके बीचों बीच रहती है. ठीक है. तो ये तो थी पूरी बैंड थ्योरी. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ये जो बैंड हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये और इसके बीच में बैंड गैप, इसका इन्वेंशन कैसे क्या हुआ है, कैसे क्या मटेरियल कैटेगरीज हुए कि ये इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है. फाइनली ये तो डिपेंड करता है उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में. ठीक है. कि किसको कंडक्टर बोला जाए, किसको सेमीकंडक्टर बोला जाए, किसको इंसुलेटर बोला जाए. ठीक है. तो हमारे नेचर में
इस टाइप के मटेरियल्स हमको मिलते हैं कि जो कंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं और इंसुलेटर होते हैं। तो ये जो बैंड थ्योरी है, इस बैंड थ्योरी का ओरिजिन कैसे हुआ, किस तरीके से इस बैंड थ्योरी का इन्वेंशन हुआ है, मतलब वैलेंस बैंड, फिर उसके बाद में कंडक्शन और बीच में बैंड गैप, ये ऐसा कंसेप्ट कहाँ से आया है, इसके लिए डिटेल्स बैंड थ्योरी में दिए गए हैं, जो हम इसके बाद के लेक्चर में देखने वाले हैं, ब्लॉच थ्योरम। और ब्लॉच थ्योरम का यूज़ करके एक मॉडल हमारे सामने रखा गया है, जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो बैंड थ्योरी के जो कंसेप्ट है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक है, और इसके बीच का जो है बैंड गैप, ठीक है, और यही कंसेप्ट जो है वो इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को अलग अलग करता है। ये जो पूरा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट पूरी तरीके से मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया है क्रोनिग-पेनी मॉडल ने यूजिंग ब्लॉच थ्योरम। तो इसके बाद के लेक्चर में हम डिटेल देखेंगे इलेक्ट्रॉन इन पीरियोडिक पोटेंशियल, ब्लॉच थ्योरम एंड क्रोनिग-पेनी मॉडल, ठीक है। क्रोनिग-पेनी मॉडल पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेगा कि ये बैंड थ्योरी आई कहाँ से है, किस तरीके से बैंड क्रिएट होते हैं, और बैंड गैप कैसी के जनरेट होती है, और किस तरीके से मटेरियल डिवाइड होते हैं इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में, ठीक है। आखिरकार ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि फर्मी लेवल का कहाँ पे फर्मी लेवल कहाँ पे रहना है, कंडक्शन बैंड के नियर या वैलेंस बैंड के नियर, ठीक है। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, lecture number 7, we'll discuss about the electron in periodic potential. So thank you very much for watching this video.